ہیں مہنگائی سے ستائے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.81 مہنگی ہو گئی ہے۔ بجلی صارفین کو اگست کے بلوں میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بعد میں جاری ہوگا۔ آپ کو بتائیں مہنگائی سے ستائے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.81 مہنگی ہو گئی۔ بجلی صارفین کو اگست کے بلوں میں ادائیگیاں کرنی ہوں گی۔ بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بعد میں جاری ہوگا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.81 مہنگی ہو گئی ہے۔ بجلی صارفین کو اگست کے بلوں میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بعد میں جاری ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بہاولپور کی تاجر برادری نے مسترد کر دیا۔ بجلی کے نرخ میں اضافہ کاروبار کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ تاجر تنظیموں نے حکومت کے خلاف اسلام آباد میں دھرنے اور بہاولپور میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اسی حوالے سے طاہر جویا سے۔ بالکل جی، وفاقی حکومت کی طرف سے بجلی کی ٹیرف میں ایک دفعہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو کنزیومر 400 سے 700 یونٹ استعمال کرے گا اس کو ₹7.5 فی یونٹ جو ہے مزید اس کو جو ہے وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اس حوالے سے جو تاجر برادری بہاولپور کی اس کا کیا کہنا ہے، کیا رد عمل ہے، ہمارے ساتھ صدر موجود ہیں انجمن تاجران کے۔ سر، کیا ریئیکشن ہوگا آپ کی طرف سے، اور یہ کیا ہمارے جو حکومت ہے یہ مزید آگے بھی کوئی بڑھانے کے چانسز ہیں ان کے؟ جی بہت شکریہ جی، سید اسرار حسین، صدر مرکزی انجمن تاجران بہاولپور۔ یہ بجلی کے حوالے سے جو حکومت نے حالیہ اضافہ کیا ہے، بلکہ یہ تو پچھلے 1 سال سے مسلسل اضافہ ہوتا آ رہا تھا۔ اب IMF کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے آلموسٹ جو ٹیرف ہیں وہ ڈبل کر دیے ہیں، اور اس میں ڈیفرنٹ سلیبز بنا دیے ہیں۔ ایک تو ریٹ بڑھا دیے انہوں نے، دوسرا اس کے سلیبز بنا دیے ہیں جس سے تقریباً 55% الیکٹریسٹی کاسٹ آتی ہے اور 45% اس میں ٹیکسوں کی بھرمار ہے۔ دیکھیے، اکنامک سائیکل پہلے ہی اس ملک میں نہیں ہے، معاشی پہیہ نہیں چل رہا، جس کی وجہ سے پچھلے سال آپ کے اکنامک جتنے ٹارگٹ تھے وہ سارے فیل ہو گئے، آپ نہیں اچیو کر سکے۔ اور اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں یہ تمام مہنگائی، ٹیکسز فیڈرل ہوں یا پروونشل اور بجلی کے بلوں میں بے پناہ جو اضافہ کیا ہے، اس سے ہمارا معاشی سائیکل جو چل رہا تھا وہ بھی رک گیا ہے۔ جو انڈسٹریز ہے وہ بند ہونے پہ آ گئی ہیں، کاروبار قسم پرسی کا شکار ہے، اخراجات ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم کاروبار کو چلا نہیں پا رہے۔ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تاجران کے پاس کہ یہ وفاقی معاملہ ہے، اس کو ہم وفاق اور اسلام آباد میں تاجر تنظیمیں جو پاکستان لیول کی ہیں ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو گورنمنٹ سے ٹیک اپ کریں اور احتجاج کی کال دیں پورے پاکستان کی تنظیموں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد میں۔ یہ اضافہ فوری طور پہ تاجر اور نہتے عوام، غریب عوام کے لیے حکومت کو واپس لینا ہوگا۔ بالکل جی، مطالبہ یہی ہے کہ جو اضافہ کیا گیا ہے ٹیرف میں اس کو واپس لیا جائے۔ اگر واپس نہیں لیا جائے گا تو متفقہ طور پر ایک احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد میں کیا جائے گا اور لوکل جو ہے ہڑتال وہ بنے گی۔ جی طاہر جو، یہ بہت شکریہ۔ بجلی نہیں آتی، صرف بل آتے ہیں۔ غیر اعلانیہ بندش کے باوجود بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ رحمہ خان کے شہری حکومت پر پھٹ پڑے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ رحمہ میں بجلی کی فی یونٹ قیمتوں میں اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر ہو چکا ہے اور میپکو انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، جس سے سب سے زیادہ متاثر اور رحمہ خان کی تاجر برادری ہے۔ اس وقت رحمہ خان کی تاجر برادری ہمارے سے موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ ممبر سپریم کونسل انجمن تاجران جنوبی پنجاب مختار احمد ببی ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ بجلی کی ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے، اوپر بجلی کے فی یونٹ میں جو ہے مزید ₹7.50 جو ہے فی یونٹ مزید مہنگی ہوئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجر برادری جو ہے پوری کاروبار پہلے ہی نہیں ہے، مہنگائی کی وجہ سے اوپر سے یہ بجلی کے بل جو ہیں ان پہ اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، یقین مانیں کہ کاروبار بالکل نہیں ہے۔ اب تاجر یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ گھر کا راشن وغیرہ پورا کیا جائے یا بجلی کا بل دیا جائے۔ ایک ہی کام ہو رہا ہے ایک ماہ میں، یا بجلی کا بل دیا جا رہا ہے یا گھر کے راشن کے لیے پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ بازاروں میں بالکل راشن نہیں ہے، کام بالکل نہیں ہے۔ مہنگائی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ کر دیں۔ یہ ہماری حالت دیکھ لیں، ادھر بجلی نہیں ہے، بالکل بجلی کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، کتنی بند ہونی ہے کتنی نہیں ہونی۔
कुछ समय से बाहर है, अवाम बहुत परेशान है। खुदारा आवाम परेशान है, ये देख सकते हैं रहीम यार खान की ताजिर बरादरी जिस वक्त परेशान है। इन ताजरों से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम दोस्त छोटे दुकानदार हैं, ताजर हैं रहीम यार खान के, ये तमाम लोग परेशान हैं जो मौजूदा बिजली के जो बिल आ रहे हैं और सोने पे सुहागा जो अभी और इसमें इजाफा कर दिया गया है और इसके साथ कोई 18 किस्म के टैक्स लगाए गए हैं और आज अब इसकी कास्ट अगर देखें तो 60 से 70 रुपये पर यूनिट तक पहुंच गई है। तो एक छोटा दुकानदार कैसे ये बिल अदा करे, जहां के कारोबारी ना तो हुकूमती कोई पॉलिसियां हैं, ना कोई कारोबार में कोई बेहतरी है, ना ही उनके लिए कोई रिलीफ दिया गया है। रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और भी हमारे साथ ताजिर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम अपने मीटर गवर्नमेंट को वापस कर दें ताकि वो हमारे टैक्सों पे पलते हैं, हम उनके टैक्सों पे नहीं पलते। अगर इन्होंने मजबूर किया तो खुदा गवाह है कि रहीम यार खान के ताजर, शॉपकीपर, छोटे दुकानदार अपने मीटर उतार कर बापदा के सुपुर्द कर देंगे। जैसे डायरेक्ट तारें सिंध में लगी होती हैं, इंशाअल्लाह व तबारक ताला हम पे पर्चे हो जाएं, हम जेल में चले जाएं, हमें कोई परवाह नहीं, हम मीटर उतरवा देंगे और डायरेक्ट तारें लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये वो ताजिर है जो बता रहे थे कि बिजली की फी यूनिट में मजीद इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग का भी जिन बोतल से बाहर हो चुकी है। मुतालबा ये पेश किया जा रहा है कि मैपको इंतजाम में बिजली सस्ती भी करें और इसके बिजली की लोड शेडिंग पे भी कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। अब आपको बताएं, हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में ताजिरान ने बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुहर्रम उल हराम के बाद एहतजाजी मुजाहिरा करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गरीब आवाम के लिए अब गुजारा करना नामुमकिन है। शहरी भी हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। बिजली के बिल उठाकर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हम पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है, मेहरबानी करें। अब जनूबी पंजाब के लोगों ने इंशाल्लाह इस तहरीक का आगाज़ करना है। बिजली की कीमतें जो कि आदमी के मुंह से नवाला छीन लिया गया है। पहले खाने की मतलब है कि उसके पैसे पूरे नहीं होते, इंसान अपनी रोटी रोजी से तंग है और बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा जो कि हुकूमत को महसूस नहीं हो रहा। अब तो बिजली चलाना महाल हो गया है। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है खुदारा वो गरीब आदमी के बारे में सोचें। इंशाल्लाह जनूबी पंजाब में इस तहरीक का मुहर्रम के बाद फ़ौरन आगाज़ कर दिया जाएगा। जनूबी पंजाब में कीमतें जो बिजली की बढ़ी हैं, महंगाई जो बढ़ी है, उससे बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और हुकूमत नहीं आ रहा। खुदारा मेहरबानी करें गरीब आदमी को। बिजली की टैरिफ में मजीद इजाफा। बहावलपुर के शहर का महंगी बिजली पर शहरों का इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। बिजली हमारे लिए बहुत महंगी हो गई है और इन्होंने जो शाम का बजट सिस्टम बनाया है जो 50 रुपए यूनिट हमारे लिए बहुत हम तो बिल्कुल ताज़े वाले। और मेरी छोटी सी रेहड़ी है, ठीक है, और मैं अपना गुजर कैसे करूंगा। और मैं यहाँ 500-700 हज़ार कमाने वाला और मैं इतने बिल कहाँ, यहाँ हमारा बिल 8-8 10,000 बिल आ रहा है। तो हमारे घर में ना फ्रिज है ना कोई ऐसी चीजें हैं, ठीक है, और बिल हमारा बहुत ज्यादा आ रहा है। सब पता है कि बिजली का रेट बहुत महंगा हो चुका है कि हमारा छोटा सा कारोबार है तो लिहाजा बिल इतने महंगे हैं कि घर के खर्चात पूरे नहीं होते तो बिल कहाँ से पूरे करेंगे हम। मेहरबानी करके बिल कम किए जाए, हमारा हुकूमत से ये इल्तिजा है। आजकल बिजली के बिल इतने महंगे होते जा रहे हैं कि दुकानदार हो या घर के, हम तो हमारे तो जितनी आमदनी है उतने बिजली के बिल आ जाते हैं और हम खाएं कहाँ से। हम तो बहुत मुतासिर हो चुके हैं निचले तबके के लोग। मेहरबानी की जाए बिजली का रेट के बारे में, क्योंकि आम आदमी इसी सोच में परेशान है। घरेलू में जाए तो हमारी यही लड़ाई होती है, बिजली का बिल इतना ज्यादा है बीवी के। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। रुझान में रूदकोही के नालों में तुगयानी, हजारों घर पर मुश्तमिल आबादी का जमीनी राब्ता शाहवाली शहर से मुनक़ता हो चुका है। लोग महसूर होकर रह गए हैं। कई एकड़ पर मुहित कपास और चावल की फसल शदीद मुतासिर। मुलहका आबादी को शदीद खतरा लाहक है। इंतजामिया मंजर-ए-आम से गायब। अहले इलाका ने इंतजामिया से नाला मंगा के सैलाबी पानी को रोकने की दरख्वास्त कर दी है। आपको बताएं, मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। रुझान में रूदकोही के नालों में तुगयानी, हजारों घर पर
मुश्तमिल आबादी का जमीनी राबता शाह होने वाली शहर से मुनक़ता। लोग महसूस होकर रह गए हैं। कई एकड़ पर मुहित कपास और चावल की फसल शदीद मुतासिर हुई है। मुल्हिका आबादी को शदीद खतरा लाहिक हुआ है। इंतजामिया मंजर आम से गायब। अहले इलाका ने इंतजामिया से नाला मंगा के सैलाबी पानी को रोकने की दरख्वास्त कर दी है। आपको बताएं कि मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। रुझान में रोदकोही के नालों में तोगयानी, हजारों घर पर मुश्तमिल आबादी का जमीनी राबता शाहूवाली शहर से मुनक़ता हो गया है। लोग महसूर होकर रह गए। कई एकड़ पर मुहित कपास और चावल की फसल शदीद मुतासिर हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद अफजल फरीदी। जी अफजल, बताइएगा। अजी, रुझान के कोह सलेमान के पहाड़ी सिलसिले में गुज़श्ता 5 से 6 दिन बारिशों के नतीजे में जो नदी नाले हैं रोदकोही के, उनमें तुग़यानी आने से नाला मंगा में शदीद किस्म का इस वक्त सैलाबी पानी आया हुआ है। नाला मंगे का सैलाबी पानी रुझान के नवाही इलाका शाहवाली में पहुंच गया है। सैलाबी पानी से कई एकड़ पर मुहित कपास और चावल की फसल जो है वो शदीद किस्म की मुतासिर हो गई है। हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी का जमीनी राब्ता भी शाहवाली शहर से मुनक़ता हुआ है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। लोग बड़ी मुश्किल से अपने इलाकों से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। मुल्हिका आबादियों को भी शदीद खतरा लाहक है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इंतजामिया मंजर से बिल्कुल गायब है। इंतजामिया की जानिब से इस वक्त रुझान के इलाके में सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कोई मौसम समाज देखने से नहीं आ रही हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नाला मंगा के सैलाबी पानी को रोकने के लिए दरख्वास्त करते हुए मुतालबा भी ये किया है कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर रोदकोही के सैलाबी पानी को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इंतजाम करें। और रोदकोही के सैलाबी पानी ने, इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि रोदकोही के सैलाबी पानी ने उनकी लाखों करोड़ों रुपए की कीमती फसलात हैं, जिनमें कपास, चावल, चना और दीगर जो फसलात हैं वो भी मुतासिर की हुई है। रोदकोही के सैलाबी पानी जो है वो बड़ी तेजी से उनके घरों की जानी बढ़ रहा है। आबादियों को शदीद खतरा लाक है। इलाका मकीनों ने मजीद मुतालबा करते हुए कहा है कि कमिश्नर डीजी खान इस बात का नोटिस लेते हुए इंतजामिया को अलर्ट जारी करें ताकि इलाका मकीनों को मुश्किलात से बचाया जा सके और सैलाबी सूरत हाल पर फिलहाल कंट्रोल किया जा सके। जी अफजल फरीदी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, रंगपुर दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। बेट के दर्जनों मौजात की सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाई कटाव से अमीरपुर, सरवाना और ब्राह्मपुर की बस्तियों को खतरात लाहिक हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। आज ही बिल्कुल दरियाए चनाब में पानी की सतह में जो है वो इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही जो दरियाए कटाव है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दर्जनों मौजाजात में किसानों की सोना उगलते ज़मीनें जो है वो दरिया निकल रहा है। मगर खसूसन जो देखने को आया कि मौजा अमीरपुर, सुरबाना और ब्राह्मपुर में जो है वो दरियाई कटाव जो है वहाँ पर ज़्यादा शिद्दत से जो है वो इस वक्त कटाव जारी है, जिसकी वजह से जो ज़मीनें हैं वो दरिया बुर्द हो रही हैं। अमीरपुर, सुरबाना और ब्राह्मपुर की बस्तियाँ जो हैं, बड़ी बस्तियाँ गिनी जाती हैं, उनको भी शदीद खतरात जो हैं इस वक्त लाहक हो चुके हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि कटाव जो वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्या कहेंगे सर? साडा ये मुतालबा है, इतने एक सुपर बन बनाया, उत्थे ब्रह्मपुर बनाए हुए ने, उत्थे बड़ी वड्डी आबादी है, वो भी नाकिस काम किया ने ढांदा पैंदा, मगर इत्थे बना देवन सानू चलो साडा बचाव हो वने। सुपर बन बनने वाले भाई साडी आबादी भी बच वही, साडे स्कूल ही बच वही सन। साडा इहो हाल काम नाल मुतालबा है। जी आप क्या कहेंगे कि कटाव बढ़ चुका है, जमीनें गिर रही हैं, काश्तकारी आप करते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जमीन दरियाई जा रही हैं, सैलाब था उसी तो वापस चला वैसी जी, जमीन तो नहीं वापस आमदियाँ जी। जेड़ा सिपर बंद बनाया नहीं जी 60 करोड़ ला के, उसका कोई फायदा ही नहीं जी। उस नुकसानात पिछा स्कूल भी जा रहा है, हाई स्कूल जा रही है, प्राइमरी स्कूल भी दरिया जा रहा है जी, कोई फायदा ही कोई नहीं। हुकूमत कोई इशू नहीं लै रही, पिछलियाँ जमीन सारियाँ बर्बाद। क्या मुतालबा करें हुकूमत ने? क्या हुकूमत आवेन इत्थे आके इशू लवेन, वेखें भी के जेड़ा ना मसला है पिया, इत्थे आके इमदाद करें। आज ही बिल्कुल यहाँ के जो मकीन है उनका यही कहना है कि 60 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो रंगपुर में सुपर बंद बनाए गए थे, जिसकी वजह से जो बाकी एरियाज हैं, जो दर्जनों मौजात हैं, वहाँ पे कटाव जो है वो बढ़ चुका है। इनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि अमीरपुर, सुरबाना के भी सुपर बंद बनाया जाए ताकि किसानों की जो ज़मीनें वो महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया राना परवेज आपका।
अब आपको बताएं, मुहर्रम में तबारकात की खरीदारी के लिए स्टॉल्स लग गए। दरबार हज़रत शाह शम्स अलैहिस्सलाम पर तबारकात के स्टॉल्स पर खरीदारी का सिलसिला जारी। अज़ादार शुहदा करबला से मंसूब तबारकात की खरीदारी कर रहे हैं। मजीद बता रही हैं अलिशबाज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरबार हज़रत शाह शम्स पे मौजूद हूँ, जिसके बाहर जो है स्टॉल्स लगा दिए गए हैं तबरुकात के हवाले से। यहाँ पे जो है अज़ादारों की बड़ी तादाद आती है तबरुकात ख़रीदने के लिए अपनी मन्नतों के हवाले से और अज़ा ख़्वानी के हवाले से जो है यहाँ से जो है अज़ादार आते हैं और अलम पाक और मुख्तलिफ जो यहाँ पे चीज़ें स्टॉल्स पे मौजूद हैं, जिसमें बेड़ियाँ, कड़े, जंजीरें भी शामिल हैं, वो लेकर जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो ये चीज़ें ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, ये तबरुकात ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, यहाँ पे मैं अलम लेने के लिए आया हूँ लाहौर से। यहाँ पे काफ़ी मन्नतें मैंने मांगी हैं, मेरी पूरी हुई हैं। तबरुकात लेने के लिए आते हैं यहाँ से, मुहर्रमों पे हर साल के साल आते हैं यहाँ से, हर चीज़ लेके जाते हैं, अलम वगैरह। उसके बाद यहाँ पे डोरी, धागा, ये वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं अपने घर वालों के लिए। अल्लाह ताला बेहतर करता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है अगर मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकें तो अलम पाक मौजूद हैं। नन्हे अली असगर की याद में शबी के तौर पे जो है उनका झूला भी मौजूद है। इसी तरह मुख्तलिफ जो अज़ादार हैं यहाँ से चीज़ें लेकर जा रहे हैं, उनकी याद में जो है ये तबरुकात लेकर जाते हैं, मन्नतें मानते हैं। इस हवाले से यहाँ पे अच्छा खासा रश लगा रहता है। जी अलिशबाज से बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़ियों की तज़ीन व आराइश के काम का आगाज़ हो गया। यौम आशूर पर ताज़िए ज़ियारत के लिए पेश किए जाएंगे। मज़ीद बता रही है सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान शहर में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अज़ादारी की तारीख़ जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। उसी मुनासबत से मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़िए भी ज़ियारत के लिए यौम आशूर पर पेश किए जाते हैं। अलंग पाक गेट पर ये ताज़िए, उनकी जो ताज़ीन व आराइश है उसका सिलसिला जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ज़ियारत जो रखी गई है ताज़िए की, ये शागिर्द का ताज़िया है, कदीम ताज़िया है। तकरीबन 18वीं सदी में उस्ताद और उसके बाद फिर शागिर्द का ताज़िया जो है वो तैयार किया गया था। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुतवल्ली हैं जो कि इन तमाम तर ताज़ियों को देख रहे हैं, इनकी ताज़ीन व आराइश का काम कर रहे हैं। थोड़ी इनकी तारीख बताइए। मैं यहाँ आस्ताना शागिर्द वाला का मुतवल्ली हूँ और इसकी तज़ीम व आराइश का काम शुरू कर लिया। आज हमने 6 मुहर्रम हराम को इसे निकाला था बाहर। अब इसकी सफाई और पेंट वगैरह और मुरम्मत का काम ये हम खुद ही करते हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों से चला आता है, नस्ल दर नस्ल हमारा हम खुद ही करते हैं इसका देखभाल। और तकरीबन इसकी 8 मंजिलें हैं, 33 फुट ऊंचाई है, 10 फुट चौड़ाई है इसकी। और इसको हम कल 7 और 8 को हम इसको मुकम्मल तैयार करके बाहर निकाल के ज़ाहिरीन के लिए ज़ियारत के लिए रख देंगे। और 10 मुहर्रम और हराम को हमारा 1 बजे यहाँ से रूट है, अलंग पाक गेट से होता हुआ हरम गेट हमारा जलूस जाता है। तकरीबन इसको 100 आदमी उठाता है। सही, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, ये जो ताज़िया इसकी ज़ियारत जो आप देख रहे हैं, तकरीबन इसकी 8 मंजिलें हैं और 33 फुट ऊंचाई पर मुश्तमिल है। और ये भी कहा जाता है कि एक मौजज़ा ही है, क्योंकि इसका जितना वज़न है तकरीबन 100 लोग इसको मिलकर ताज़िए को जो है वो उठाते हैं और फिर अलंग की जो तंग गलियां हैं वहाँ से इसको जलूस के साथ लेकर जाना और ज़ियारत के लिए पेश करना भी एक बहुत अहम जो है वो एक मरहला होता है। अगर बात की जाए ताज़ीन व आराइश की तो 7 और 8 मुहर्रमुल हराम को इन ताज़ियों की ताज़ीन व आराइश जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी और फिर 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को ये ताज़िए जो हैं वो ज़ियारत के लिए पेश किए जाएंगे, जिस पर आकर अज़ादार मन्नतें मुरादें भी मांगते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका।